Hello children, today is the second class of semiconductors and in this we will be learning what is intrinsic semiconductors, how the structure of an intrinsic semiconductor look like, it's just an imagination how it will look in the atomic level, 0 केल्विन पर यानी एकदम एब्सोल्यूट जीरो पर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्यों? इसमें नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका होल्स का मतलब क्या होता है, होल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, है ना। अच्छा, तो ये सब हम सीखेंगे। उसके बाद हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में सीखेंगे डोपिंग करके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कैसे बनाया जाता है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, उसमें डोनर लेवल क्या होता है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या, हाँ उसमें एक्सेप्टर लेवल क्या होती है, कैसे कंडक्टिविटी चेंज होती है, और कैसे एक छोटा सा डोपिंग भी कंडक्टिविटी को कई गुना ड्रास्टिकली चेंज कर देता है। कैसे, इन सब के बारे में हम जानेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। You can see in the semiconductors part 2 we will be learning about the intrinsic semiconductors and the extrinsic semiconductors, because semiconductors are the one which are used in the electronic circuits, right? And all the electronics whatever you are using, it is based on the semiconductors electronics, right? So what is the semiconductors behavior, how it is different from the metal, and what do you understand by the intrinsic semiconductor and the extrinsic semiconductor, right? In intrinsic semiconductor we will study how the crystal structure of the semiconductor looks like, what happens at 0 Kelvin. And now there is a new term introduced in the conductions, that is, see, we have learned that the electrons are the one which conducts electricity, right? Now I'll be studying today about the holes, because the concept of the holes is introduced in the case of the semiconductors, right? Then we will see that intrinsic semiconductors means it's pure semiconductors, right? There is only and only the one type of the atoms which is present in that, right? Now अगर हम extrinsic semiconductors की बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि impure semiconductors। लेकिन इसमें जो impurity जब आप डालोगे तो impurity कैलकुलेटेड होगा। आप उसकी कंडक्टिविटी को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलोगे, और दैट इज समथिंग कॉल्ड एज द डोपिंग करके, है ना। डोपिंग का मतलब एडिंग द इम्प्योरिटीज इन द कैलकुलेटेड अमाउंट, राइट? वो करेंगे, कैसे करना, उससे क्या होगा, that will be the main topic today. And then in that extrinsic type of the semiconductors, we have got the two types of the semiconductors. One is the N type of the semiconductor and other is the P type of the semiconductors, what we will be learning, right? So let's start. Yeah. Second point, please see, you write the heading now and I will sit again for the notes. Let me explain the things first and then we will sit for the notes, ठीक है? Because notes पे मुझे और कुछ भी लिखवाना होगा, so जिससे different होगा, so आप लोग उसको बाद में लिखेंगे, पहले समझ जाएंगे, ठीक है? Okay. So semiconductors के important properties हमें पढ़ना है आज. So important properties semiconductors की क्या होती है? सबसे पहले all the semiconductors have got the negative temperature coefficient, ठीक है? Metals में हमने क्या पढ़ा था? When we studied about the metals and the conductivity of the metals, etc., what did we study? Now, in the case of the metals, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, है ना। और अब रेजिस्टेंस बढ़ रहा था तो टेम्परेचर के साथ साथ वो जो ओम्स लॉ फॉलो करना बंद कर दिया था। क्यों हो रहा था ऐसे? क्योंकि हमें पता है ना बेटा कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि हमने कहा रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब मेटल के जो
अंदर, हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब घूम रहे होते हैं तो वो आपस में कोलाइड करते हैं, टक 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 टक्कर मारते हैं। टेम्परेचर को बढ़ा दो तो ये जो कोलिशन है उसकी रेट्स बढ़ जाती है ना। तो रेट्स बढ़ जाती है तो कोलिशन का वजह से, ज्यादा कोलिशन की वजह से ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है। दिस इज व्हाट वी स्टडीड, राइट? टेम्परेचर इंक्रीज्ड, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, कारण मोर कोलिशंस, इसलिए मोर रेजिस्टेंस। दिस इज व्हाट वी स्टडीड। बट in the case of the semiconductors, the things are different. How it is different? Why it is different? For this, let me explain to you what happens in the case of the semiconductors. In the semiconductors, what happens is, if the temperature is increased, the resistance decreases, the resistivity decreases. Now, what about the conductivity? The conductivity increases and the current in the semiconductor, that also increases. Why? We will study about the structures, right? Now, the next important property of the semiconductor is the semiconductor has a covalent bond. The semiconductors have a covalent bond and they also have the crystalline structure, है ना, द फेस सेंटर्ड क्यूबिक्स, है ना, क्रिस्टल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसको हम देखेंगे कि वो कैसे दिखते हैं। नाउ अगर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज को ऐड कर दें तो कंडक्शन की प्रॉपर्टीज में एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आ जाता है ना। थोड़ी सी इम्प्योरिटी और ड्रास्टिक चेंज इन द प्रॉपर्टीज, दिस इज व्हाट वी लर्न, राइट? नाउ what is the place of the semiconductors? Elementary, we are talking about the elementary semiconductors. Generally they belong to the group number 14, राइट? हाँ, आजकल तो ऑर्गेनिक हो गया और बहुत कुछ हो गया, लेकिन यहाँ अगर हम सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, हाँ, तो उस केस में ये जो फोरबिडन एनर्जी गैप है वो आपके पास में रहता है 0.1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मतलब उससे कम ही होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफी कम रहता है। इट इज इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 1.1, इस रेंज में आपका फोरबिडन एनर्जी गैप रहता है। फोरबिडन एनर्जी गैप क्या है? हाँ, देखो हमने आपको पिछले क्लास में बैंड्स बताया था। कितने प्रकार के बैंड्स बताए थे? बताइए। यहाँ पर हमारे पास वैलेंस बैंड होता है और दूसरा जो बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड क्या है? वो एनर्जी का लेवल उस इलेक्ट्रॉन्स की जो सेमीकंडक्टर्स के अंदर में घूम रहे हैं, लेकिन हाँ क्या होता है, हाँ बॉन्डेड वाले जो न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लेवल्स को हम बैलेंस बैंड कहते हैं, है ना। कंडक्शन बैंड क्या होता है? हाँ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होते हैं ना पूरे क्रिस्टल के अंदर, हाँ, जिसकी कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, तो इसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो गैप रहता है, इसका हाईएस्ट और इसका लोवेस्ट, बैलेंस बैंड्स का हाईएस्ट और द कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एनर्जी गैप, राइट? सो आर यू क्लियर टिल हियर? या इसमें हमारे पास बहुत टाइप के सेमीकंडक्टर्स तो होंगे, लेकिन जो हम एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे, मेनली हम बात करेंगे, यूज करते हैं हम जर्मेनियम और सिलिकॉन की। जर्मेनियम, उसका एटॉमिक नंबर 32 है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है? 2 8 18 4। अब 2 का एनर्जी लेवल 8 वाले का एनर्जी लेवल अलग, और 18 में जितने जो फोर्थ ऑर्बिट के सब एनर्जी लेवल अलग, तो फोर्थ ऑर्बिट के एनर्जी लेवल अलग, राइट? ओके, ये बैलेंस बैंड्स के हैं। वैसे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 284, राइट? सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग होगी। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम में एक शो करने के लिए कोशिश किया है, ऑफ कोर्स कॉपीड फ्रॉम द नेट. Now you can see that, just a minute, let me increase the view so that you can see clearly. Yeah, यहां देखिएगा, जैसे बैंड एनर्जी लेवल हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर रखा है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज द मेजर ऑफ एनर्जी and that is taken in a very very small order. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 joule, very small value. but जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर देखते हैं तो ये वैल्यू काफी बड़ी होती है. तो जर्मेनियम की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी लेवल, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी लेवल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट पे हैं तो उनकी एनर्जी लेवल किस किस के बीच में रहेगी, सेकेंड ऑर्बिट पे रहेगी तो किस लेवल पर रहेगी, थर्ड पे रहेगी तो कितनी रहेगी, और चौथा दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंस बैंड.
बैलेंस बैंड मतलब आखिरी वाला बैंड, लेकिन अभी भी वो न्यूक्लियस से बंधे हुए होते हैं, है ना। तो बैलेंस बैंड से आप एनर्जी दोगे थर्मल या कुछ भी प्रकार का, और जब बढ़ेगा और वो कंडक्शन बैंड पे जाएगा तो वो कंडक्टिविटी के लिए रहेगा। तो हमारे पास बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, दैट डिफरेंस इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इन द केस ऑफ द जर्मेनियम. But what is the case if it is there in the silicon? Silicon is the smaller atom, right? So in that case, there is the third जो बैंड है वो बैलेंस बैंड होता है, थर्ड वाला जो ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट, ऐसे आता है, ठीक है, ओके. Charge carriers in the semiconductors. Now, whenever we talk about the charge carriers in the semiconductors, see, in metals it is only the electrons which carries the current, right? But now in the semiconductors there is another concept which is introduced, and that concept is hole. So, who carries the current in the semiconductor? It is electrons as well as the holes. The electron and hole, both of them contribute to the current in a semiconductor, right? Now we are going to study how it is just a depiction, आप तो देख नहीं सकते इसको, लेकिन हाँ एक सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल किस प्रकार से दिखता है और वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है फॉर द कंडक्शन, राइट. So let us see, there is a silicon का मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ऐसे एक डिपिक्शन में दिया है, एक रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन किया है. तो सिलिकॉन के क्रिस्टल सिलिकॉन्स अरेंज्ड होंगे, है ना. सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो नेचुरली सिलिकॉन 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 सब सिलिकॉन एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड्स, है ना. हर सिलिकॉन एक जो उसके नेबरिंग जो भी सिलिकॉन का एटम होता है ना उसके साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है. 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाली इसके बारे में बात करते हैं, मिडिल वाला, वैसे बहुत कुछ रहेगा, सब कुछ घिरा हुआ रहता है ना. तो एक सिलिकॉन का एटम है, ये वाला टेम्परेचर की बात का है बेटा, यहां पर भी आप मानिएगा कि ब्लू वाला है. तो हमारे पास यहाँ सिलिकॉन है, यहां पर भी सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन आया, वैसे ही 4 सिलिकॉन एटम जो नेबरिंग 4 सिलिकॉन के एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, सेटिस्फाइड 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको आउटरमोस्ट ऑर्बिट में मिल जाएगा. वैसे ये 0 केल्विन पे रहेगा जब बॉन्ड्स आपको नहीं टूटते. लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेचर मोर देन T बिकम्स ग्रेटर देन 0 केल्विन, क्या होगा, 0 केल्विन में से टेम्परेचर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा किया तो यहां जो बॉन्ड्स होते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से टूटेगा. थर्मल एनर्जी की वजह से टूटा तो क्या बाहर निकला, इस जगह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और ये अब फ्री हो गया, ये क्रिस्टल लैटिस पर घूमेगा और इसकी जो एनर्जी है वो कंडक्शन बैंड के एनर्जी के बैंड में चली जाएगी. मतलब एनर्जी बढ़ गई. पहले जब यहां इसके साथ बंधा हुआ था तो उसकी एनर्जी कितने की थी, तो बोले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर थी, है ना. अब क्या इसके अंदर एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई क्योंकि थर्मल एनर्जी उसने गेन कर लिया, इस बॉन्ड के बंधन से मुक्त हो गया, कंडक्शंस बन के यहां से वो घूम रहे. अब अगर तुमने एक्सटर्नल फील्ड दी तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काबिल हो गया. लेकिन बेटा यहां एक मजेदार बात हो गई, यहां पर एक होल क्रिएट हो गया. अब ये होल क्रिएट हो गया तो ये जो होल की जगह, ये पड़ोस में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है इसने देखा जगह खाली, तो ये जगह खाली है तो ये क्या करने के लिए आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठेगा यहां आ जाएगा, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन यहां कूद के आ गया तो आपका होल कहां क्रिएट हो गया, आपके होल यहां पर क्रिएट हो गया. अभी हमने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया, बिना एक्सटर्नल फील्ड लगाए भी
इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया और यहां पर होल क्रिएट हो गई। भाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरफ, होल्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा। वैसे ये एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिएगा कि यहां से भी निकल के गया। इलेक्ट्रॉन मेरा ब्लू ले लेते हैं इसको, जस्ट अ मिनट। यहां से निकला इलेक्ट्रॉन, मान लीजिएगा कि यहां पहुंच गया, तो ये क्या करेगा, यहां से देखेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन जंप मार के क्रिस्टल लैटिस में अपनी जगह बदली, तो वहां पर एक होल आ जाएगा। राइट, तो आपके पास क्या दिख रहे हैं, हमारे पास दो जन फ्री हो गए, एक तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और उसके साथ साथ यहां पर होल्स भी फ्री हो गए। तो होल्स का जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन मूव होगा ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे आपके होल्स मूव होंगे। भाई होल्स क्या है, वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन के लिए एक वैकेंसी, खाली जगह है ना, उसमें कुछ है नहीं, हाँ उसमें कुछ है नहीं, लेकिन वो किस तरह बिहेव करता है, वो इस तरह बिहेव करता है कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज, इसमें उतना पॉजिटिव चार्ज रहेगा जितना इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्जेस है। 1.6 into 10 to the power of -19 होल, एक होल के पास चार्ज उतना ही आ जाएगा। तो अब हमारे सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो करंट को कैरी करने के लिए चीजें मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और फ्री होल्स भी हैं। और कितने होल्स क्रिएट होंगे ये तो बताओ, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही मेरे पास होल्स भी क्रिएट होंगे। क्यों, क्योंकि थर्मल एनर्जी इस सेमीकंडक्टर को मिल गई और इस सेमीकंडक्टर्स के थर्मल एनर्जी की वजह से बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन मिला, कंडक्शन बैंड में चला गया, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन गया, वो जहां से निकला उसकी जगह होल्स बन गया। ठीक है, तो अब इसका मतलब अगर मैं यहां पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बैंड्स के बारे में देखूं, तो 0 केल्विन पर सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये चारों के चारों कहां बैठे हैं, तो 0 केल्विन में सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ही बैठे हैं। उन सब की जो एनर्जीज होती है वैलेंस बैंड के लोवेस्ट और हाईएस्ट लेवल के बीच में होती है, कोई कंडक्शन बैंड पे रहेगा ही नहीं, एब्सोल्यूट इंसुलेटर। 0 केल्विन पर इट इज एन एब्सोल्यूट इंसुलेटर, इसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल 0 होती है। लेकिन जब हमने थोड़ा सा भी टेम्परेचर को बढ़ाया, जब थोड़ा सा भी टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड पर बैठे हुए थे, उन्होंने थर्मल एनर्जी को गेन किया, इस एनर्जी गैप को जंप किया। मतलब एनर्जी गैप में तो कोई इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है ना, मतलब इस एनर्जी के बीच में किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, वैलेंस बैंड से जंप करते हैं, मतलब उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और किस में आ जाती है, कंडक्शन बैंड के लोवेस्ट और हाईएस्ट लेवल के बीच में। नाउ दे आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही जितने इलेक्ट्रॉन्स गए ना, तो होल्स उतने ही पैदा हो गए, कहां पर, वैलेंस बैंड पर। इलेक्ट्रॉन्स कहां कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहां कंडक्ट करेंगे, तो इसका आंसर दोगे जब वो कंडक्शन बैंड पे जाएंगे। लेकिन होल्स कहां बैठे होते हैं, वैलेंस बैंड पर। होल्स कहां रहते हैं, बोले वैलेंस बैंड पर बैठे हुए होते हैं। चलिए, जब हमारा जो सब्सटेंस है ना 0 केल्विन के ऊपर चला गया, तो कोवैलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं और टूटने के बाद थर्मल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, टाइनी टाइनी इलेक्ट्रिक करंट बन सकते हैं अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ तो। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अक्रॉस आपने अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अब चल पड़ेंगे, होल्स भी चल पड़ेंगे, क्योंकि
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं गेन कर रहे थे, कौन गेन कर रहा था? जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले, हाँ, जो टूट करके बॉन्ड से बाहर आए, उन्हीं के पास ऐसे कैपेसिटी रहती है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को गेन करके मूवमेंट में मदद कर सके। जो वैलेंस बैंड में बैठे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जो होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट हो गए, जो होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट हो गए थे, वो वैलेंस बैंड में ही रहते हैं, वो भी एनर्जी गेन कर सकते हैं इस एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से, और वो भी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स मैं बता दूं आपको। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ठीक है, तो अल्फा जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो आपको नेगेटिव मिलता है। जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट यहां मिलता है वो आपका नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ की पॉइंट्स बता दूं। जो इसको मैंने यहाँ पर आपको एक दूसरे फॉन्ट पे लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सीबीएसई के कोर्स में नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्स में आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, if it is taken as n, then it is given by the formula A t raised to the power of 3 by 2 E change in the energy gap, या change in the energy gap, ये सब पावर में है, divided by 2 kT, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.38 into 10 to the power of -23 जूल पर केल्विन। T is the absolute temperature, अगर डिग्री टेम्परेचर में दिया होगा, सेंटीग्रेड में दिया होगा तो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है, और A कुछ सिंपल सा कांस्टेंट होगा, और डेल एफ जी इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन एंड द बैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम आएगा। ठीक है, अब सवाल, ठीक है, पहला सवाल, ठीक है, which particles can gain energy from external electrical source? Which particle can gain energy from the external electrical source for the conduction of electricity through the semiconductors? Now answer. Free electrons. It is the electrons which is present in the conduction band and the holes in the valence band. The conduction bands are created because of the thermal energies, right? Okay. फर्स्ट चैप्टर में भी हुआ था ना वो सर्किट में। देखो वहां मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस आपका कम हो रहा है। मेटल्स के केस में क्या हुआ था? मेटल्स के केस में क्या हुआ था? टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ा था। इस केस में कम हो रहा है ना? और मैंने वहां पर रीजन क्या बताया आपको? रीजन क्या बताया था, बताइए। टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ जाए। नहीं, वहां क्या हुआ था? उसके केस में क्या हुआ? मैं वहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था और टकरा रहे थे, इसकी वजह से रेजिस्टेंस हो रहा था। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ बताऊं मैं? यहाँ पर टेम्परेचर को जैसे जैसे हम बढ़ा रहे थे तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड्स टूट रहे, टेम्परेचर के साथ साथ बॉन्ड्स टूट रहे थे। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखो टेम्परेचर बढ़ा तो एन बढ़ गया। एन बढ़ गया मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए उतने सारे होल्स, तो उतने सारे आपके पास करंट कैरिंग जो चार्ज कैरियर्स है वो बढ़े, और करंट तो बढ़ेगा ही इसके अंदर। करंट बढ़ेगा इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो क्योंकि तुमको पता है I इज इक्वल टू N E A V D, ठीक है। अब टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ टक्कर इसमें भी बढ़ता है बेटा, लेकिन उससे कहीं 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 ज्यादा क्या बढ़ गया, N। और N बढ़ने की वजह से इसका रेजिस्टेंस कम।
अब आया, this is a very very important thing to understand and you will be asked question on that. टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हुआ, तो यहाँ पर इसका वैल्यू y, ये y का आंसर आपको देना। कारण क्या है? कारण हमारे पास में यहाँ आ गया। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि n का टेम्परेचर के साथ साथ, दैट इज n इंक्रीजेस एज 3t टू द पावर ऑफ 3/2। टेम्परेचर बढ़ा, n बढ़ा, n बढ़ा तो करंट बढ़ा, करंट बढ़ा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। पूरे ऑरेंज में आ गया, समझ में आपको? यस, ओके, नाउ या अंडरस्टूड बेटा? Yes. Yeah. Yes, ma'am. So this type of the question, if it is asked, you should be able to explain it just in one sentence. Is it clear? Okay. Now the thing comes is for the silicon at the solid room temperature. Silicon at the solid room temperature, there are, if you have got 10 to the power of 12 silicon atoms, इतने सारी ना, 10 to the power of 12 silicon atoms में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, है ना, 10 to the power of 12। ये ऐसा हो गया कि हमारे पास में प्राइम मिनिस्टर एक आदमी बनता है, वैसे ही यहाँ पर सिलिकॉन के इतने सारे एटम्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद करके कंडक्शन बैंड में जाएगा। जर्मेनियम के साथ 10 to the power of 9 जर्मेनियम एटम से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप मार करके कंडक्शन बैंड पर जाएगा। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर्स बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगा तो ओम्स लॉ को ओबे करेगा, है ना, तो फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड 10 to the power of -6 होना चाहिए था, यहाँ पर उतना वोल्ट्स कम लगाओगे तो वो ओम्स लॉ को, उससे ऊपर के फील्ड में करंट को कोई मतलब नहीं, अप्लाइड फील्ड वो अपना रहेगा, ये अपना रहेगा, है ना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड the concept of the holes in the semiconductors, right? Okay, so ये क्या, चलो देखते हैं ना। होल्स के बारे में यहाँ एक डायग्राम से समझाया, बट मैंने ऑलरेडी इसको अभी बता दिया। एक्सटर्नल एनर्जी लेने पर होल्स कब होगा सेमीकंडक्टर्स पे आगे आएगा, जब हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे। किस रूप में देंगे? हीट एनर्जी के रूप में, या फिर रेडिएशंस। रेडिएशंस मतलब लाइट एनर्जी हो सकता है, कोई भी प्रकार का रेडिएशन, जैसे हमने यूवी रेज डाला, एक्स रेज डाला, तो इसमें क्या होगा, तभी ये बॉन्ड्स अपने टूटे। बॉन्ड्स टूटे तो इलेक्ट्रॉन goes from valence to conduction band, and valency of the E is created in the valency bond. This is called as the holes. Holes have the same charge, positive, and this positively charged vacancy moves randomly in the semiconductors. Electron अपना घूमेगा और holes अपना घूमेगा, और external अगर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, नहीं तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स अपने क्रिस्टल लैटिस पर मूव होते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि होल्स कैसे घूमेंगे और इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमेंगे। देखो, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आया, तो होल्स कैसे जाता है, होल्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो होल्स यहाँ से यहाँ पहुंच गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे, राइट। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द होल्स? रैंडमली भी, जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स नहीं भी लगाया तो भी जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का मूवमेंट और होल्स के डायरेक्शन के मूवमेंट में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पर मूव करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस होल्स एक्चुअली, अभी पूछा ना किसी ने, तो इट इज द मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड।
It acts as a positive charge. Its effective mass is more than that of electrons. And mobility of the hole is less than the electron. Movement जो restricted होगा, जितना electrons freely move हो पाएंगे, उसके comparisons में जो mobility of the hole is less than the electrons. Holes actually acts as a virtual charge, beta. Although there is no physical charge on it, है ना? Physical charge तो किसके पास में था? Electrons के पास में था. लेकिन ये जो क्या करेंगे हमारे होल्स है, कंडक्ट भी करेंगे, राइट? तो यहाँ पर वो वर्चुअल चार्ज की तरह एक्ट करता है. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल. ओके, नाउ सी ओवरऑल क्रिस्टल जो रहता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है. इज द क्रिस्टल पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड? तो आंसर इज नो. When you read the NCERT book, you will get a paragraph on that, right? Whether if it is a semiconductor, whether it is an intrinsic semiconductor or it is a doped semiconductor, it will not possess any charge, because whatever is the electrons and the holes are there, it is inside the crystal. Nothing is coming out, right? So this whole semiconductor as such is not a charged one, है ना? Electrostatic charge इस पर नहीं आएगा. Hole current. At room temperature, breaking of bonds की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और उसकी जगह पर, खाली जगह पर होल्स प्रोड्यूस हुआ, और होल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होगा. ठीक है, अच्छा, तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? प्योर सेमीकंडक्टर्स के बारे में. चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन द सेमीकंडक्टर. Now, that is called as the doping. What is doping? Doping का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल जो होता है ना, जैसे मैंने सिलिकॉन ले रखा है, इस सिलिकॉन के अंदर हम अगर एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, एक क्रिस्टल, एक एटम ला करके यहाँ पर डाल दिए, एक एटम ला करके यहाँ पर हमने डाल दिए, तो वो एन टाइप हो जाएगा, क्योंकि हमने एक पेंटावैलेंट. वही चीज सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर में हमने बोरॉन, इंडियम या फिर कोई ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को डाल दिए, सो दिस बिकम्स अ पी टाइप ऑफ अ सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो ये जो डोपिंग होती है, दैट इज जो डोपेंट एटम जो होता है ना, डोपेंट एटम की जो साइज होनी चाहिए वो सिलिकॉन के साइज के आसपास होनी चाहिए. ये सिलिकॉन के साइज के आसपास होनी चाहिए. मतलब हम नहीं चाहते कि इसमें कोई इम्प्योरिटी आ जाए, पूरा क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को बिगाड़ दे. सोच के देख, आपके पास में क्रिस्टल एकदम अरेंज. क्रिस्टल का मतलब क्या होता है कि इसकी जो सारी एटम्स होते हैं ना, एकदम एक पर्टिकुलर तरीके से, एकदम कायदे से, सलीके से अरेंज, है ना? अब इसके सलीके में से आप ऐसे कर रहे हो कि मान लो कि एक एटम ला रहे हो जो बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, इस क्रिस्टल लैटिस में रख रहे हो, तो क्रिस्टल लैटिस डिफॉर्म हो जाए, है ना? हम ज्यादा नहीं चाहते, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस साइज का आपका सिलिकॉन का एटम है उसी के आसपास के साइज का एक डोपेंट एटम भी लिया जाएगा और उसको यहाँ पर डाला जाएगा. मेथड्स है, एलॉय मेथड, डिफ्यूजन मेथड. ये हमारे कोर्स में नहीं है, दो अलग अलग मेथड्स होते हैं. डिफ्यूज कर दिया जाता है क्रिस्टल लैटिस में, या फिर उसको एलॉय बनाया जाता है, गला के उसको डाला जाता है. एलॉय मेथड आजकल नहीं यूज हो रहा है, जो भी हो रहा है तो डिफ्यूजन मेथड से ही कर रहे हैं. डिफ्यूजन मेथड आप लोग डिफ्यूजन समझते हो ना, एक क्रिस्टल के ऊपर में दूसरे क्रिस्टल रख देते हैं और उसको डिफ्यूज करवाते हैं. तो डिफ्यूज करवाने से क्या होता है कि ये जो पेंटावैलेंट है ना एलिमेंट, यहाँ पर एंटीमनी होना चाहिए. इसमें लेड लिखा हुआ है, इसमें मैं एंटीमनी लिखूंगी, यहाँ पर लेड नहीं लिखूंगी, यहाँ पर एंटीमनी लिखूंगी. एक मिनट बेटा, चेंज कर लेती हूँ इसको मैं. जस्ट मोमेंट. एंटीमनी हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, इसका पी का बी काट देती हूँ, फॉस्फोरस हो सकता है ना? इसमें ये आ गया. और यहाँ पर क्या हुआ, फॉस्फोरस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं बताइए? 5. 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले 4 सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड्स बना, एक इलेक्ट्रॉन बच गया. एक इलेक्ट्रॉन बच गया और ये फ्री इलेक्ट्रॉन में एक्स्ट्रा आ गया. भाई बॉन्ड टूट के जो बन रहे वो तो बन रहे,
टेम्परेचर बढ़ा, सिलिकॉन का क्रिस्टल इतना बड़ा, इतना सारा एटम्स उसके अंदर, उन सब से जो टूट टूट के निकला है थर्मल वाले वो तो है ही है, उसके अलावा जितने आपने डोपेंट एटम डाले उसके अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली अब चक्कर काटेगा किसके अंदर, सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसकी एनर्जी वैलेंस बॉन्ड से ज्यादा लेकिन कंडक्शन बैंड से कम। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी एनर्जी वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा लेकिन कंडक्शन बैंड के एनर्जी से कम, है ना। वैसे ही अगर आप एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर दो तो क्या होगा, उसके पास 3 है बेचारे के पास, तो 3 पड़ोसी लोगों के साथ में हाथ बांध लिया, है ना, एंड कोवैलेंट 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 3 के साथ बना लिया, चौथे के साथ में उसके पास है, चौथे ने तो इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास यहाँ पर एक होल खाली बेचारा, बॉन्ड कहां से बनाएगा, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो गया, एक होल क्रिएट, एक होल क्रिएट हो गया एक्स्ट्रा, यानी आपने एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा क्रिएट करवा दिया ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डाल के। तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डाल करके जब आपने यहाँ पर होल क्रिएट कर लिया तो ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन गया। ठीक है, तो दिस इज द डोपिंग। क्या करते हैं, डिजायरेबल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी, मतलब कितना इंप्योरिटी डालना जिसकी वजह से कितनी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, ये मैन्युफैक्चरर इंजीनियर के हाथ में है। जिस प्रकार के उसको सेमीकंडक्टर्स चाहिए वो उस प्रकार का सेमीकंडक्टर्स बनाएगा, उस प्रकार का सेमीकंडक्टर्स वो बनाएगा। सो डिजायरेबल अमाउंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम कितना होता है, आपने कितनी डोपिंग डालनी है। डोपिंग जनरली बहुत 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 लो होता है, कितना लो, डोपिंग रेशियो वेरीज फ्रॉम प्योर 1:10⁻⁶, यानी पार्ट्स पर मिलियन, 1 पार्ट पर मिलियन। लिखा कैसे जाता है, 1 ppm, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, या इट इज 1:10⁸, यानी 10⁸ अगर आपके पास में सिलिकॉन के एटम्स है तो उसमें एक एटम फॉस्फोरस का, 1 पार्ट पर मिलियन, इसका मतलब 10⁶ एटम्स आपके पास क्या है, आपके पास अगर सिलिकॉन का एटम है तो एक एटम फॉस्फोरस का। ठीक है, द साइज ऑफ द डोपेंट इंप्योरिटीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्रिस्टल एटम के साथ में होना चाहिए सो दैट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज। ठीक है, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स आफ्टर डोपिंग। नाउ extrinsic semiconductors after doping the impurities. Extrinsic semiconductor प्योर फॉर्म में जर्मेनियम सिल्वर होता है, सिलिकॉन होता है। इंट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की मैं बात करूं तो हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म में जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to number of holes, that is equal to total number of the electrons, intrinsic semiconductors के carriers। लेकिन जब n टाइप यानी पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज जब हम डालते हैं तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनमें से हम कुछ भी चीजों को डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें आपके पास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, number of electrons is very large as that of the number of holes। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें उनको चेंज करना पड़ेगा, it is H, it is not N, right? And in the case of the P type of the semiconductor, the number of holes is very large as compared to that of the electrons. Now this is n type में the impurity it is called as the donor impurity, donate कर रहा है इसीलिए it is called as the donor impurity। और p type में क्या कर रहा है,
वो एक्सेप्ट कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सेप्टर, राइट. सो यू कैन सी दैट इन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आफ्टर डोपिंग, ये वाला सब जो है ये आफ्टर डोपिंग वाला है, राइट. और ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर फॉर्म में जर्मेनियम सिलिकॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स एंड दैट इज इक्वल टू इंट्रिंसिक साइज ऑफ द जो भी पार्टिकल्स रहेगा. एन टाइप पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी रहेंगे. इसके एग्जांपल्स ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी. एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी 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 लार्ज एज दैट ऑफ कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ होल्स. बहुत ज्यादा हो जाता है. कैसे? हम न्यूमेरिकली आपको बताएंगे. पी टाइप ऑफ में आपको ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं. क्या क्या डाल सकते हैं? गैलियम, बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम, कुछ भी डाल दो. और यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द number of electrons, and this is called as the acceptor impurities. इसको हम क्या कहते हैं? This is called as the acceptor impurity कहलाता है. ठीक है, ओके. चलो बैंड से समझाते हैं कि एक एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या हो रहा है. लेट मी एनलार्ज द व्यू फॉर यू नाउ. यहाँ व्यू कहाँ गया? ये रहा. चलिए और बढ़ा दूं. चलिए और बढ़ा देते हैं. तो यहाँ पर आपके पास जो बैंड थ्योरी के अनुसार अगर हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है ये जानेंगे. श्रेया तूने पूछा था ना बेटा, तुमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स वो निकल रहे थे वो क्या करेंगे? वो ना बेटा कंडक्शन बैंड के नीचे आ जाते. उनके पास वैलेंस बैंड से बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होती है, फर्मी लेवल के ऊपर. तो थोड़ी सी एनर्जी दे दो, थोड़ा सा पुश मारो, वो कहां पहुंच जाएंगे? डोनेट कर देंगे कंडक्शन बैंड पे और कंडक्शन शुड, राइट. सो दिस इज द एनर्जी बैंड ऑफ द एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर, राइट. वैलेंस बैंड और यहाँ पर कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड. तो गैप तो होता ही रहेगा. देखो यहाँ पर जो हमारे पास में जो थर्मल वाले इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे ना, हीट की वजह से वो तो जाएंगे ही जाएंगे. ये जो डोनर एक्स्ट्रा वाला डोपिंग की वजह से मिला था वो एक्स्ट्रा है, वो यहाँ थे, थोड़ा सा एनर्जी मिला, कंडक्शन बैंड पे पहुंच गए और कंडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया. ठीक है, यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है. यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशंस जो पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर्स का मैंने एक और डायग्राम यहाँ पर आपके लिए डाल दिया. पी डाला, यहाँ देखिए कंप्लीशन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये घूमेगा. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर आपके पास इसी का एक और डायग्राम मैंने ले लिया है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का. फास्फोरस डाला, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, यहाँ पर 4 बंद गए, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया. अगर क्रिस्टल लैटिस को देखना चाहते हो और डायग्राम से समझना चाहते हो तो ठीक है, ओके. अब जब इसके नोट्स है यहाँ पर, इसको आपको लिखना है. Same way you have got for the P type of the semiconductors. In the P type of the semiconductor, we have what? And the P type of the semiconductor, देखिए बोरॉन यार इनकम्प्लीट बॉन्ड रहेगा ना. देखो 4 के साथ उसने नहीं कंडक्ट कर सकता. देखो यहाँ से बॉन्ड बनाया, यहाँ से बॉन्ड बनाया, 3 वाले थे. उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 3 के साथ वो जर्मेनियम का साथ बन गया. लेकिन ये जर्मेनियम दे रहा है इसको इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास कुछ नहीं. तो यहाँ पर इसके पास होल्स प्रोड्यूस हो गया और यहाँ पर बहुत सारे होल्स बनेंगे. ठीक है, और इसमें कंडक्शन बैंड से कैसे समझाएं पी टाइप में? देखिएगा हमारे पास ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन, राइट. तो वैलेंस बैंड के ऊपर हमारे पास होल्स होंगे. वैलेंस बैंड से आपको कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से आप ये एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल पर तक पहुंचा. इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठे हैं? वैलेंस बैंड पे. आपको इतनी दूर पहुंचाने की जरूरत नहीं है. आप एक्सेप्टर लेवल पर डाल दो तो होल्स अपने आप कंडक्ट करना शुरू कर देंगे. इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचा दो ना यहाँ पर, है ना, पूरे यहाँ तक का पहुंचाने की जरूरत नहीं है. यहाँ तक का पहुंचा दो तो यहाँ तो होल्स ऑटोमेटिकली खूब सारे बन जाएंगे. और खूब सारे होल्स बन जाएंगे तो वैलेंस बैंड पर ही तो बैठ करके होल्स कंडक्ट करते हैं. तो आपके पास ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आ जाती है. ठीक है, या बच्चों मैं यहाँ पर एक कॉलम बना के रखी हूँ ना, इस कॉलम को थोड़ा ध्यान से इसको लिख लेना बेटा. हाँ ये देखो ये आ गया
आपके पास ये जो कॉलम जो बनाया है ना, ये कॉलम को मैं भी अच्छे से दिखा देती हूँ। इस कॉलम को आप फटाफट लिखोगे ना, ये सारी चीज एक कॉलम में आ गया, और आपको जब नोट्स निकाल करके रिवाइज करोगे ना, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा ना, उसको आप ऐसे नोट कर लेना। ओके, नाउ वी हैव द सवाल। सवाल क्या? सवाल ये कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को आप बोल रहे हो पार्ट्स पर मिलियन पे ऐड करो, थोड़ा सा ऐड कर रहे हो, अरे क्या ही फर्क पड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन 1 मिलियन में, और ऊपर से वो इंट्रिंसिक वाला तो और भी था, बहुत ही कम, तो उससे करंट पे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो यहाँ मेरे पास एक न्यूमेरिकल से मैं आपको इसको बता देती हूँ। सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लेते हैं बेटा। हाँ, ये लीजिए। हाँ, 1 मिनट। हाँ, क्या ले रही हूँ मैं? या हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको मैं कलर कर लेती हूँ। सिलिकॉन का क्रिस्टल, in silicon crystal, if doping is 5 into 10 to the power of 7 atoms, if indium atoms are done, then find the number of the acceptor atom per cubic centimeter, given that the atom density of the silicon is 5 into 10 to the power of 28 atoms. ठीक है, कितना करंट पड़ जाएगा? आपने कितनी डोपिंग करी है? कितनी डोपिंग करी है? 5 into 10 to the power of 7 एटम्स सिर्फ कर रहे, और उस पे आपको कितने एटम्स टोटल है? 5 into 10 to the power of 28। हम बोल रहे हैं कि एक इंडियम को डालने पर एक होल मिलता है ना। 1 इंडियम एटम, 1 इंडियम atom gives 1 hole। ठीक है, तो आपके पास इतने सारे एटम्स हैं, therefore number of holes obtained कितना होगा? 5 into 10 to the power of 28 divided by 5 into 10 to the power of 7। 5 में कैंसिल, तो आपने लिखा that is 10 to the power of 21 होल्स, लेकिन कितने में? पर मीटर क्यूब, लेकिन उसने सेंटीमीटर क्यूब पूछा है ना, तो सेंटीमीटर्स में आप कन्वर्ट करोगे। 1 सेंटीमीटर्स का आप सिलिकॉन का क्यूब ले लो, हाँ, 1 सेंटीमीटर का क्यूब छोटा सा क्यूब होता है, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा कितने आपके पास में होल्स आ जाते हैं? तो आपको पता है ना बेटा, 10 to the power of 6 that is equal to, ये मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 10 to the power of 21 divided by 10 to the power of 6 कितना होगा? तब भी अपने पास कितना बचा है? that is 10 to the power of 21 minus 6, 15. That much of holes even just in 1 centimeter cube, इतना ज्यादा हो जाता है। So do you understand कि हमारी डोपिंग हम बोल रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन असर बहुत ज्यादा हो जाता है। So आपको जो करंट का जो वैल्यू है, हाँ, वो एक सेमीकंडक्टर्स अगर डोप्ड हो तो काफी बढ़ जाता है, सिग्निफिकेंटली आपको ये वैल्यूज बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर बच्चा?